Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and this is the second video of chapter Haloalkenes and Haloarenes. In previous video, we already completed the basic concepts and classification of organic halides. Now, in this video, we will discuss the nature of carbon-halogen bond, polarity and bond enthalpy of carbon-halogen bonds, preparation of haloalkanes from alcohol using halogen acid, sodium halide, phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride, halides in the presence of red phosphorus and thionyl chloride. But before that, if you are new in this channel, then please subscribe the channel so that you can get notifications of all the newly uploaded videos and also like and share the videos. So let's start the video from our first topic, that is nature of carbon-halogen bonds. Nature of CX bond. Now, the carbon-halogen bond in both haloalkanes and haloarenes are covalent in nature. लेकिन इनमें जो halogen atom होता है, it is more electronegative, while ये जो carbon atom होता है, it is less electronegative. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, it is more attracted towards halogen, जिसके कारण halogen carries partial negative charge and carbon carries partial positive charge. That means now this bond becomes polar in nature and it shows dipole moment. So first characteristic जो है हमारे CX bond का है, that is this bond is polar in nature for both haloalkanes and haloarenes, and इसका reason है the difference in electronegativity of halogen and carbon atom. Now next characteristic हम discuss करेंगे stability of carbon halogen bond in haloalkanes and haloarenes. Now जो bond stability है, that is in haloalkanes and haloarenes are also different. अब हम इनके reasons को discuss करेंगे. Now जो carbon halogen bond haloalkanes में होता है, in that carbon is sp3 hybridized, while जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलोअरीन्स में होता है, इन दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. नाउ s कैरेक्टर की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर इज 25% एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में s कैरेक्टर इज 33.33%, जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है. नाउ एज वी नो दैट कि s कैरेक्टर बढ़ने से हमारा जो बॉन्ड लेंथ है इट डिक्रीजेस, एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने से बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो है दैट इंक्रीजेस. बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस. एंड फाइनली हम लोग कह सकते हैं दैट मीन्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑफ हेलोअल्केन्स it is more than carbon halogen bond of haloarene. So carbon halogen bond की लेंथ ज़्यादा होने के कारण haloalkanes are more reactive while haloarenes are less reactive. This is our first characteristic. Now second characteristic हम discuss कर सकते हैं on the basis of resonance effect. As we know that कि यहाँ पे हमारा जो कार्बन है it is sp3 hybridized and haloalkanes में there is no resonance effect. बट हमारा जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हेलोअरीन्स में, और यहाँ पे रेजोनेंस इज प्रेजेंट. अब रेजोनेंस के कारण हमारा जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इट बिकम्स पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड जिसके कारण हमारा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, दैट मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती है, एंड फाइनली रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. सो from these two reasons we can say that कि haloalkanes are more reactive compared to haloarenes. Now let's discuss bond length, stability, bond enthalpy and polarity of carbon halogen bond. Now carbon halogen bond के अंदर halogen can be fluorine, chlorine, bromine और iodine. Now इनको हम लोग compare करेंगे. So fluorine, chlorine, bromine and iodine are elements of group 17, that is halogens.
नाउ अगर हम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. दैट मीन्स आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग हेलोजेंस. नाउ जब हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो हेलोजेंस के एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट आल्सो इंक्रीजेस. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. स्टेबिलिटी डिक्रीज होने से बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस. एंड फाइनली जो बॉन्ड की पोलैरिटी है दैट इज डाइपोल मोमेंट इट आल्सो decreases. So we can say that bond enthalpy and stability is inversely proportional to bond enthalpy and polarity. So that means bond length increases, stability decreases, then bond enthalpy also decreases and polarity of bond also decreases. Now let's discuss the bond length, bond enthalpy and bond polarity of few alkyl compounds. So यहाँ पे हम जो alkyl compounds use कर रहे हैं that is CH3F, that is fluoromethane, chloromethane, bromomethane and iodomethane. Now as we can see that कि यहाँ पे property जो है that is bond length, it is represented in picometer, bond enthalpy is represented in kilojoule per mole and polarity of bond that is dipole moment is given in dB. डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला इट इज चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ दैट इज डिस्टेंस. नाउ चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की होती है मीटर. सो इट इज कूलम मीटर बट इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज dB. नाउ हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ऑफ फ्लोरोमीथेन. नाउ फ्लोरोमीथेन की बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर एंड आयोडोमीथेन जो है हमारा लास्ट कंपाउंड है इसकी बॉन्ड लेंथ है 214 पिकोमीटर. सो हम देख सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है. अब इसका रीजन क्या है? रीजन इज एटॉमिक साइज ऑफ दीज हेलोजेंस. एज वी नो दैट कि इसमें हमारा जो फ्लोरीन है इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, देन क्लोरीन उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्लोरीन एंड आयोडीन इज हाइएस्ट इन साइज. सो हम देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे हमारा एटॉमिक रेडियस जो है ये इंक्रीज हो रहा है. नाउ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा सो बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस. दैट्स वाई बॉन्ड लेंथ जो है फ्लोरोमीथेन का 139 है वाइल क्लोरोमीथेन इट इज 178, फॉर ब्रोमोमीथेन इट इज 193 एंड फॉर आयोडीमीथेन इट इज 214 पिकोमीटर. नाउ बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एंथैल्पी के साथ इनवर्स रिलेशन है. दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरोमीथेन की बॉन्ड लेंथ 139 है एंड बॉन्ड एंथैल्पी 452 है, वाइल जो हमारा आयोडोमीथेन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसकी मैक्सिमम है दैट इज 214 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंथैल्पी मिनिमम है दैट इज 234 किलोजूल पर मोल. दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है एंड बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर है कि बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड. सो दैट मीन्स फ्लोरोमीथेन की जो बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर है जो कि सबसे छोटी है एंड जो पोलैरिटी है इट इज 1.847 dB, वाइल आयोडोमीथेन की जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 214 पिकोमीटर और इसकी जो पोलैरिटी है बॉन्ड की इट इज 1.636 dB. नाउ दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है. बट यहाँ पे आप एक एक्सेप्शन देख सकते हैं दैट इज फॉर क्लोरोमीथेन इट इज 1.860 जो कि फ्लोरोमीथेन की कंपैरिजन में ज्यादा है. दैट मीन्स इट इज एन एक्सेप्शन. नाउ इसका रीजन क्या है? नाउ रीजन जो है एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल. यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी के अलावा एटॉमिक साइज एज वेल एज चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस स्लाइट इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जो कि एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना से हमें पता चला था. सो दैट इज एन एक्सेप्शन. अदर देन दैट हमारा जो रूल है वो सब में फॉलो हो रहा है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ फ्यू अल्काइल कंपाउंड्स.
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन कंपाउंड्स। नाउ यहाँ पे हम जो प्रिपरेशन करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। नाउ वी नो दैट की फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल इज सिंपल। हाउ? हेलो अल्केन इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल बाय हेलोजन। नाउ इसको हम जनरल वे में समझते हैं। सपोज दिस इज आवर अल्कोहल। अब अल्कोहल के अंदर जो ROH बॉन्ड है हम इसको डिसोसिएट करेंगे और इसके अंदर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज OH, इसको हम लोग रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस, और इसके बदले हम लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे हेलोजन दैट इज X माइनस। दैट मीन्स OH को X माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहा है। नाउ ये जो दोनों ग्रुप्स हैं दे आर नेगेटिव, सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोफाइल। सो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल को हेलोजन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दैट मीन्स इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में SN रिएक्शन बुलाते हैं। नाउ SN रिएक्शन के अंदर दो पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो प्रिपरेशन है हेलो अल्केन्स का, जो कि हम अल्कोहल की हेल्प से कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है हेलो अरेन्स के लिए फ्रॉम फिनॉल? सो इसको समझने के लिए वी विल कंपेयर देम। नाउ सपोज दिस इज अल्कोहल दैट इज ROH। नाउ दिस इज अ फिनॉल। नाउ अब यहां पे हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, कि अल्कोहल में R जो है दैट इज कार्बन, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वाइल फिनॉल के अंदर जो कार्बन होगा दैट इज द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ जैसा कि हमने वीडियो में आगे डिस्कस किया था कि S कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है दैट इज 33.33% इन फिनॉल एंड हियर इट इज ओनली 25%। सो S कैरेक्टर के इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स हमारा जो फिनॉल की रिएक्टिविटी है ये हो जाएगी लेस कंपेयर टू अल्कोहल। सो एक रीजन ये भी है कि हम फिनॉल को हेलो अरीन प्रिपेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ सेकेंड फिनोमिना है दैट इज रेजोनेंस, जो कि फिनॉल में पॉसिबल है जबकि अल्कोहल्स में पॉसिबल नहीं है। इसके कारण भी हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड फाइनली रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट फैक्टर जो है कि अगर हम बात करें अल्कोहल की तो बॉन्ड डिसोसिएशन के बाद जो हमारा कार्बन है इट फॉर्म्स R+ दैट इज कार्बोकैटाइन, वाइल अगर हम फिनॉल में से OH को रिमूव करेंगे इट विल फॉर्म PH+ दैट इज फिनाइल कैटाइन विच इज हाईली अनस्टेबल। दैट मीन्स इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। वाइल अगर हम कार्बोकैटाइन की बात करें तो टर्शरी कार्बोकैटाइन्स आर स्टेबल while secondary are less stable and primary is least stable. That means in case of tertiary carbocation reaction is possible. So ये तीन reasons ऐसे हैं जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि for the preparation of haloarenes हम phenols को use नहीं कर सकते हैं, while for the preparation of haloalkanes we can use alcohol. Now our first preparation method is by passing dry hydrogen halide gas from alcohol in the presence of anhydrous zinc chloride or heating the alcohol and concentrated hydrogen halide in high temperature. This process is also known as Groves process. Now इस process में हमें करना क्या है? It is very simple. हमें alcohol को और हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट करना है in the presence of anhydrous zinc chloride और हमें हेलो अल्केन मिलेगा along with वाटर मॉलिक्यूल एज अवर बाई प्रोडक्ट। नाउ इस रिएक्शन के सिंपल मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं जो हमें याद रखने में इजी है। नाउ सपोज यहाँ पे हमारा अल्कोहल डिसोसिएट हुआ तो इसमें से क्या रिलीज होगा? इट विल रिलीज R+ एंड साथ में रिलीज होगा OH माइनस। सिमिलरली हमारा HX जो है अगर ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ से रिलीज होगा H+ along with X माइनस। नाउ हमें यहाँ पे सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। दैट मीन्स यहाँ से हमें OH माइनस और H+ को कंबाइन करना है एंड दे विल फॉर्म वाटर दैट इज अवर बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारा जो X माइनस है ये R+ के साथ कंबाइन होके
RX बनेगा, दैट इज आवर मेन प्रोडक्ट हेलो अल्केन। नाउ यहाँ पे हमें दूसरी बात जो याद रखनी है, दैट इज द नेचर ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जो है वो टर्जरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अल्कोहल। अगर आपने अल्कोहल प्राइमरी लिया देन कार्बोकैटायन विल बी प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी था देन इट विल फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर आपने अल्कोहल टर्जरी यूज किया देन इट विल फॉर्म टर्जरी कार्बोकैटायन। नाउ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, वी नो दैट कि स्टेबिलिटी की जो सीरीज है इन विच टर्जरी इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लीस्ट स्टेबल। सो दैट मीन्स अगर हमारा अल्कोहल होगा, एट दैट केस टर्जरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, दैट इज मैक्सिमम। एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इट इज लीस्ट, सो प्राइमरी अल्कोहल की जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी होगी दैट विल बी मिनिमम। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अल्कोहल्स। नाउ यहां पे हमारा जो हाइड्रोजन हैलाइड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन है, दैट मिक्सचर इज नोन एज लुकास रीएजेंट। दैट्स वाई इस टेस्ट को हम लोग लुकास टेस्ट बोलते हैं, जो कि यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नाउ टर्जरी इज मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी इज less stable and primary is least stable, and we know that rate of reaction is directly proportional to stability. That means यहाँ पे हमारा tertiary alcohol की stability सबसे ज़्यादा है, so that means rate of reaction will be high. So in case of tertiary alcohol we will get oily drops and this reaction will be very fast. Now अगर हम secondary alcohol को use करेंगे then it will take time. It will take around 5 minutes for the reaction and we will get milky mixture from secondary alcohol. Now if we take the example of primary alcohol, it is least stable in case of carbocation, so reaction या तो possible नहीं होगा at normal temperature, that is room temperature, या अगर हम temperature को increase करें then reaction is possible. So on the basis of this Lucas test we can also identify the difference between प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अल्कोहल्स। नाउ इस रिएक्शन के एक्चुअल मैकेनिज्म को हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रिएक्शन मैकेनिज्म। सो इनिशियली अल्कोहल दैट इज ROH reacts with HCl, that is hydrochloric acid, in the presence of anhydrous zinc chloride, that is our catalyst, and it will produce RCl as product and water एज बाई प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए इनिशियली हमको लोन पेयर शो करना है अल्कोहल के ऑक्सीजन पे। नाउ हमारा जो HCl है ये डिसोसिएट होगा और इसमें से रिलीज होंगे दो आयंस, दैट इज H+ एंड Cl-। नाउ यहाँ पे जो हमारा जिंक क्लोराइड है इट विल बिहेव एज लुईस एसिड, दैट मीन्स इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। नाउ ये ऑक्सीजन जब लोन पेयर डोनेट करेगा सो एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दैट इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा RO एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ZnCl2 और नीचे हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्योंकि एक लोन पेयर चला जा चुका है ऑक्सीजन का तो सिर्फ एक सिंगल लोन पेयर रहेगा, और क्योंकि एक लोन पेयर चला गया है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिंक के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा लोन पेयर। नाउ यहाँ पे हमें सबसे मेन चीज ये याद रखनी है कि ऑक्सीजन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहता है, इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। सो ये अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए नेबरिंग एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन पेयर छीनेगा और यहाँ पे ये कार्बन से छीनने वाला है इलेक्ट्रॉन पेयर। सो दैट मीन्स कार्बन जो है दैट इज द अल्काइल ग्रुप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव करेगा और ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा एंड इट विल रिलीज R+, that is our carbocation. Now the nature of this carbocation depends on the alcohol. अगर आप अल्कोहल टर्जरी,
सेकेंडरी या प्राइमरी यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन टर्जरी, सेकेंडरी या प्राइमरी फॉर्म होगा। एंड आप जानते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी हाईएस्ट किसकी है, टर्जरी की है, इसलिए रिएक्टिविटी में भी टर्जरी अल्कोहल सबसे हाईएस्ट होगा। नाउ हमारा जो यहाँ पे कंपाउंड है वो यहाँ से एक्स्ट्रा जो रिमूव होगा दैट विल बी ZnCl2 along with this OH माइनस। नाउ यहाँ पे हमारा ZnCl2 जो है ये अगेन डिसोसिएट होगा और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा ZnCl2 along with OH माइनस। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ZnCl2 एज इट इज हमें प्रोडक्ट में मिल गया, जो कि हमारे कैटालिस्ट में प्रेजेंट था, और यही हमारा कैटालिस्ट का प्रॉपर्टी है कि इट इज नेवर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ये जैसे हमने रिएक्शन में ऐड किया था सेम उसी फॉर्म में हमें प्रोडक्ट में अगेन मिल जाना चाहिए। सो ZnCl2 एज इट इज हमें मिल गया। नाउ हमारे पास अभी तीन चीजें अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज दिस H+, दिस Cl- एंड दिस R+। एज वी नो दैट कि R+ और Cl- कंबाइन हो जाएगा एंड वी विल गेट RCl, दैट इज आवर हेलो अल्केन। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है ना। हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट है दैट इज वाटर, वो फॉर्म होगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस H+ विद दिस OH- एंड वी विल गेट H2O. दिस इज आवर बाई प्रोडक्ट. So this is the complete mechanism of this reaction where alcohol is used to prepare haloalkane by reacting with hydrogen halide in the presence of anhydrous zinc chloride. Now our second reaction is preparation of haloalkane by reacting alcohol with sodium halide and concentrated sulfuric acid. Now यहाँ पे हम देख सकते हैं कि alcohol is reacted with sodium halide. Especially we use sodium bromide in the presence of concentrated sulfuric acid and we will get haloalkane, sodium hydrogen sulfate as our salt and water is our byproduct. Now इस रिएक्शन को याद रखने के लिए एक सिंपल मैकेनिज्म स्टडी करते हैं. Now इनिशियली हमारा जो अल्कोहल है it will release two ions that is R+ carbocation and OH- that is hydroxyl ion. Now similarly NaX जब डिसोसिएट होगा तो इसमें से दो आयंस रिलीज होंगे that is Na+ and X-, and H2SO4 also release two ions that is H+ and HSO4-. Now याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि आपका OH- और H+ इनिशियली कंबाइन होगा and it will produce water. This is our byproduct. आपका Na+ and HSO4- कंबाइन होगा and they will form NHSO4 that is sodium hydrogen sulfate. ये हमारा सॉल्ट है एंड फाइनली हमारा R+ एंड X- कंबाइन होगा एंड दे विल फॉर्म RX. दिस इज आवर हेलोअल्केन. नाउ दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म जो हमें याद रखने के लिए इजी है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल मैकेनिज्म. जो एक्चुअल मैकेनिज्म है हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे. नाउ सपोज यहाँ पे हमारा इथेनॉल रिएक्ट हो रहा है सोडियम ब्रोमाइड से एंड वी विल गेट 1 ब्रोमो इथेन along with sodium hydrogen sulfate, salt and water. Now इस पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट करते हैं. Now इनिशियली हमारा Na जो है it will release Na+ along with Br- and हमारा H2SO4 है it will form H+ along with HSO4-. Now यहाँ पे हमारा जो अल्कोहल है that is ethanol. This ethanol is present in the presence of concentrated H2SO4. Now we know that कि H2SO4 is a dehydrating agent. That means ये water remove करेगा इथेनॉल से and the process is beta elimination, जो कि आपने already 11th में पढ़ा हुआ है. Now that means हमारा जो इथेनॉल है this ethanol will lose OH and 1 hydrogen from its beta carbon और ये combine होके फॉर्म करेंगे water, जो कि हमारा बाई प्रोडक्ट है. Now यहाँ पे हमारा जो Na+ है और HSO4- है they will combine to form NaHSO4. That means हमारे दो प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं. Now आगे का रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना है कि हमारा जो इथेनॉल है ये डिहाइड्रेशन करने के बाद आल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा that is CH2 डबल बॉन्ड CH2. राइट. नाउ हमारे पास जो आयंस अभी प्रेजेंट हैं वो हैं one is Br- from NaBr and second one is
H प्लस फ्रॉम H2SO4। नाउ इन दोनों में से ज़्यादा एक्टिव है H प्लस। नाउ सपोज H प्लस कार्बन पे अटैक करेगा। अब कार्बन को H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ मूव करना पड़ेगा। नाउ व्हाट वी विल गेट CH3 एंड CH2, और हमारा जो सेकेंड कार्बन है इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज बिकॉज यहाँ से पाई बॉन्ड मूव हो चुका है। नाउ ऑन दिस कार्बन हमारा Br माइनस अटैक करेगा और फाइनली हमको मिलेगा CH3 CH2 Br। दिस इज अवर हेलो अल्केन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। सो दिस वाज द second reaction where we prepared haloalkane by reacting alcohol with sodium halide in the presence of concentrated sulfuric acid. Now ये reaction directly possible नहीं था, इस reaction को possible बनाया H2SO4 ने। How? Because H2SO4 ने initially इस alcohol का dehydration किया और इसे convert कर दिया alkene में। After that alkene के साथ हम लोगों ने H प्लस को रिएक्ट किया और लास्ट में फाइनली Br माइनस ने अटैक करके इसे हेलोअल्केन में कन्वर्ट किया। नाउ इन आवर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल्स आर रिएक्टेड विद हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस टू गेट हेलोअल्केन, और यहाँ पे 3 डिफरेंट रिएक्शंस पॉसिबल है। फर्स्ट, जहाँ पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल्स आर रिएक्टेड विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड टू गेट 3 मोल्स ऑफ हेलोअल्केन along with phosphorus acid, और यहाँ पे halogen is specified, it should be chlorine or bromine. Now in our second reaction, 1 mole of alcohol is reacted with phosphorus pentachloride and we will get 1 mole of haloalkane along with phosphorus oxyhalide and HCl. And in our third reaction, alcohol is directly reacted with dihalogen in the presence of red phosphorus so that we will get haloalkane along with phosphorus acid, और यहाँ पे भी हमारा halogen specified है, it should be bromine or iodine. Now on the basis of these products we will predict the mechanism of reaction one by one. Now let's discuss the mechanism of our first reaction, that is when 3 moles of alcohol is reacted with 1 mole of phosphorus trihalide, then it will form 3 moles of हेलोअल्केन along with 1 mole of phosphorus acid, और यहाँ पे हमारा हेलोजन स्पेसिफाइड है that it should be क्लोरीन और ब्रोमीन। now यहाँ पे हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि हमारा रिएक्टेंट जो है that is अल्कोहल, यहाँ पे 3 मोल अल्कोहल यूज होंगे एंड बदले में हमें 3 मोल हेलोअल्केन प्रोडक्ट में मिलेंगे। now सेकेंड चीज हमें याद रखनी है कि ये रिएक्शन एक्चुअली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। दैट मीन्स हमारा जो मैकेनिज्म होगा ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। एंड तीसरी बात हमको याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमारा बाई प्रोडक्ट है दैट इज H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ये हमें लास्ट स्टेप में दैट इज एंड ऑफ द मैकेनिज्म मिलेगा। नाउ हम लोग मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, दैट इज अवर 3 स्टेप मैकेनिज्म। नाउ फर्स्ट स्टेप, इनिशियली हमारे अल्कोहल के 3 मोल में से 1 मोल रिएक्ट करेगा दैट इज ROH, और ये रिएक्ट करेगा PCl3 के साथ। नाउ यहाँ पे हमारे अल्कोहल के लोन पेयर को मैं रेड डॉट से शो कर रहा हूँ। दिस इज द लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। नाउ यहाँ पे PCl3 इनिशियली अपने अंदर से एक Cl माइनस रिमूव करेगा जिसके कारण फॉस्फोरस विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। नाउ यहाँ से अल्कोहल का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फॉस्फोरस को डोनेट करेगा जिसके कारण एक नया बॉन्ड बनेगा दैट विल बी ROPCl2 एंड दिस इज H। अब क्योंकि ऑक्सीजन के 2 में से 1 लोन पेयर डोनेट हो चुका है, नाउ इट हैज ओनली 1 लोन पेयर एंड इट हैज पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस को पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ऑक्सीजन का लोन पेयर मिल चुका है, दैट्स वाई अब फॉस्फोरस पे कोई भी चार्ज नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहता। सो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे ये अट्रैक्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस R।
जिसके कारण यहां से हमारा R जो है इट विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ R प्लस, और बाकी जो ग्रुप है इट विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ PCl2OH। अब यहां से हमारा R प्लस एंड Cl माइनस फर्स्ट स्टेप में कंबाइन होके हमें 1 मोल ऑफ RCl देंगे। दिस इज द फर्स्ट मोल ऑफ आवर प्रोडक्ट। दैट मीन्स हमने इनिशियली 1 मोल अल्कोहल को रिएक्ट करके 1 मोल हेलो अल्केन फॉर्म किया। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। नाउ ऐसे और 2 स्टेप्स आगे होंगे। नाउ इन आवर सेकेंड स्टेप अल्कोहल का हमारा सेकेंड मोल विल रिएक्ट विथ द बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप दैट इज PCl2OH। नाउ यहाँ पे भी हमें अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर को शो करना है। नाउ यहाँ पे भी सेम फिनोमेना होगा। इस कंपाउंड में से एक Cl माइनस रिमूव हो जाएगा जिसके कारण फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ इस फॉस्फोरस के पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा एंड एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज ROPClOH एंड दिस H। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है उसके 2 में से 1 लोन पेयर डोनेट हो चुका है। दैट मीन्स नाउ दिस ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एज यूजुअल क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट डोंट वांट टू कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो ये क्या करेगा, ये नेबरिंग अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा जहां से R प्लस रिमूव होगा और अलॉन्ग विद दैट जो हमारा बाय प्रोडक्ट होगा दैट विल बी PClOH ट्वाइस। नाउ यहाँ पे हमारा R प्लस एंड Cl माइनस कंबाइन होके हमारा सेकेंड मोल ऑफ हेलो अल्केन फॉर्म होगा और यहाँ पे हमारा जो बाय प्रोडक्ट होगा दैट इज PClOH ट्वाइस, जो कि हमारे थर्ड स्टेप के रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा। नाउ आवर थर्ड स्टेप। इन आवर थर्ड स्टेप द लास्ट मोल ऑफ अल्कोहल दैट इज थर्ड मोल ऑफ अल्कोहल विल रिएक्ट विथ PClOH ट्वाइस, जो कि हमारे सेकेंड स्टेप का बाय प्रोडक्ट था। नाउ यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन के लोन पेयर को शो करना है एंड यहाँ पे भी हमारा इस कंपाउंड में से एक Cl माइनस रिमूव होगा जिसके कारण फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए यहाँ से हमारा लोन पेयर ऑक्सीजन का फॉस्फोरस की तरफ मूव होगा और एक हमारा कंपाउंड जो फॉर्म होगा दैट विल बी ROH एंड POH ट्वाइस। नाउ यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है उसमें 2 में से 1 लोन पेयर डोनेट होने के बाद 1 लोन पेयर बचा एंड इट हैज पॉजिटिव चार्ज। नाउ सेम फिनोमेना अप्लाई होगा। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट डोंट वांट टू कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो ये क्या करेगा, ये नेबरिंग कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा और यहाँ से रिलीज होगा R प्लस अलॉन्ग विथ POH थ्राइस। तो यहाँ पे हमारा जो R प्लस है ये Cl माइनस के साथ फाइनली कंबाइन होकर हमारा लास्ट एंड दैट इज द थर्ड मोल ऑफ हेलो अल्केन फॉर्म करेगा जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जो हमारा बाय प्रोडक्ट बना दैट इज POH थ्राइस, इसको आप H3PO3 भी लिख सकते हैं, दैट इज आवर phosphorus acid, that is our final byproduct. So this was the mechanism of our first reaction. Now we will discuss the reaction mechanism of our second reaction, that is when 1 mole of alcohol is reacted with 1 mole of phosphorus pentachloride, it will form 1 mole of haloalkane along with phosphorus oxychloride and HCl gas. Now इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में हमारा अल्कोहल का 1 मोल रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ। और यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है उसके हम लोन पेयर को शो कर देते हैं। और यहाँ पे भी सेम फिनोमेना होगा, फॉस्फोरस में से एक Cl माइनस रिमूव होगा जिसके कारण फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ना इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फॉस्फोरस की तरफ मूव करेगा जिसके कारण एक कंपाउंड बनेगा दैट विल बी ROPCl4 एंड दिस इज H। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे सिर्फ एक लोन पेयर बचा सो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। नाउ एज वी नो दैट कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव,
सो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नाउ दिस टाइम ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। ना आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इनिशियली हमने देखा था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन से अट्रैक्ट करा था, बट व्हाई दिस टाइम हाइड्रोजन? बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग मैकेनिज्म से हम लोग प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट से मैकेनिज्म को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो H से रिमूव होगा और यहाँ से H जो है वो बन के निकल जाएगा H+। नाउ फाइनली हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारे पास H+ है और यहाँ पे हमारे पास Cl- है। अब ये दोनों कंबाइन होके हमें मिल जाएंगे HCl, जो कि हमारा फर्स्ट बाई प्रोडक्ट है। नाउ इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बचा दैट इज ROPCl4। नाउ यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, अब उसके पास अगेन 2 लोन पेयर आ चुके हैं। नाउ अगेन इस बार PCl4 में से एक Cl- रिमूव होगा, जिसके कारण फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन अगेन अपना एक लोन पेयर फॉस्फोरस को डोनेट करेगा, जिसके कारण एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। नाउ आपका प्रोडक्ट हो जाएगा RO डबल बॉन्ड PCl3। और क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जा चुका है, अब इसके ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ दिस टाइम ये जो ऑक्सीजन है अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इट विल रिलीज R+ along with POCl3 एंड यहाँ पे जो आपके पास R+ है ये फाइनली यहाँ के Cl- के साथ रिएक्ट करेगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज हेलो अल्केन RCl फॉर्म होगा। सो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट है RCl एंड दिस इज योर बाई प्रोडक्ट HCl एंड POCl3। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड रिएक्शन, जहां पे हमने 1 मोल अल्कोहल को रिएक्ट किया था 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, जहां पे हमें प्रोडक्ट में हेलो अल्केन, फॉस्फोरस ऑक्सीहेलाइड और HCl गैस मिला। नाउ इन आवर नेक्स्ट रिएक्शन 1 मोल ऑफ अल्कोहल is directly reacted with 1 mole of dihalogen gas in the presence of red phosphorus, which is our catalyst, and produces 1 mole of haloalkane along with 1 mole of phosphorus acid। और यहाँ पे भी हमारा हेलोजन स्पेसिफाइड है, इट शुड बी ब्रोमीन और आयोडीन। नाउ यहाँ पे हमें 2 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता, दैट मीन्स अल्कोहल इज नॉट डायरेक्टली रिएक्टेड विथ हेलोजन। सो ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे होता है? तो इसके मैकेनिज्म में इनिशियली हेलोजन और रेड फॉस्फोरस आपस में रिएक्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट कि इनिशियली हमारा हेलोजन दैट इज X2 ये रिएक्ट करता है फॉस्फोरस के साथ। तो एक्चुअली 3 मोल्स ऑफ X2 रिएक्ट करते हैं 2 फॉस्फोरस के साथ एंड इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। नाउ सेकेंड स्टेप में हमारा फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, दैट इज ROH plus PX3. Then it produces 1 mole of haloalkane, that is RX, along with H3PO3. Now यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप का रिएक्शन है दैट इज अल्कोहल और फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, ये केस हम लोगों ने फर्स्ट केस में स्टडी किया था जहाँ पे हमने इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी स्टडी किया है। सो सेम मैकेनिज्म यहाँ भी अप्लाई होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब हम अल्कोहल को डायहेलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअली डायहेलोजन और रेड फॉस्फोरस इनिशियली रिएक्ट करके फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड बनाते हैं एंड आफ्टर दैट ये फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेलोअल्केन फॉर्म करता है। सो दिस वाज द थर्ड केस वेयर हेलोअल्केन्स आर प्रिपेयर्ड by reacting alcohol with phosphorus halides or dihalogen. Now our last method of preparation is by reacting alcohol with thionyl chloride we can get haloalkane. Now यहाँ पे सिंपल से एक रिएक्शन को देखते हैं। When 1 mole of alcohol is reacted with 1 mole of thionyl chloride, we will get 1 mole of haloalkane along with HCl and SO2 gas as a byproduct. Now this reaction is considered as best method for the preparation of
हेलो अल्केन। अब उसका रीजन क्या है? रीजन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दैट इज HCl एंड SO2 बोथ आर इन गैसियस स्टेट, सो दे कैन बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। अब क्योंकि प्रोडक्ट साइड में से अगर हम लोग इन दोनों गैसेस को रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, सो विल गेट मोर प्रोडक्ट। और यहाँ पे हमारा जो कैटालिस्ट है दैट इज pyridine, इट इज बेसिक इन नेचर, सो हमारे दोनों गैसेस जो हैं बोथ आर एसिडिक इन नेचर, सो pyridine इन गैसेस को एब्जॉर्ब करके प्रिवेंट करता है बैकवर्ड रिएक्शन ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। नाउ इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के हिसाब से मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट करते हैं। नाउ एज पर द रिएक्शन व्हेन 1 mole of alcohol is reacted with 1 mole of thionyl chloride, we will get 1 mole of haloalkane along with HCl gas and SO2 gas. Now इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। For that we have to consider the lone pairs also. So 1 mole of alcohol is reacting with 1 mole of thionyl chloride. So this is our thionyl chloride. Now यहाँ पे हमारे thionyl chloride के सल्फर के लोन पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, सो उनमें से एक लोन पेयर वो डोनेट करेगा। सो हमें स्ट्रक्चर में मिलेगा ROHSCl एंड ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज। एंड यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, सो इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। नाउ एज वी नो दैट कि ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, सो नेबरिंग हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल रिलीज H+। सिमिलरली यहाँ पे जो सल्फर है उसके पास में जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो एक लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल रिलीज Cl-। सो फाइनली this H+ and this Cl- will combine and they will produce our first byproduct that is HCl. So ये हमारा first byproduct है। Now इसके बाद हमारे पास जो बचा they are ROS oxygen with negative charge, Cl and sulfur with positive charge. Now यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर को अगेन सल्फर की तरफ मूव करेगा and we will get ROS double bond O and Cl. Now as we know that कि अभी इन ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर अगेन आ चुके हैं, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर में से एक पेयर सल्फर की तरफ मूव करेगा और वहीं पे यहाँ से एक क्लोरीन एक लोन पेयर लेके Cl- बना के निकल जाएगा। सो वी कैन से दैट कि अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बचा? प्रोडक्ट में बचा RO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O। एंड अब इस बार ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया है। नाउ दिस ऑक्सीजन कंटेन ओनली 1 लोन पेयर along with पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये नेबरिंग कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से हमारा कार्बन जो है रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ R+। नाउ दिस R+ एंड दिस Cl- ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड फाइनली वी विल गेट RCl. दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट एंड वी विल ऑल्सो गेट SO2 दैट इज आवर बाई प्रोडक्ट। सो this is the last category of reaction where we prepared haloalkane by reacting alcohol with thionyl chloride. So students, in today's video we covered the complete concept of carbon halogen bond, its nature, its polarity and bond enthalpy. We also discussed the preparation of haloalkanes from alcohol using various reagents. We also discussed the mechanism of the reactions. Generally mechanisms are not asked in your board exam, but mechanism based questions are asked in competitive exams. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. You can download the assignment related to today's topic from the link given in the description section. If you found this video useful, then like the video and share it with others also. So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.